Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, you will learn the very important concept regarding mechanism of enzyme action. As you all know, enzyme react with substrate. The substrate are specific for enzyme. Later, the enzyme remain unutilized in the chemical reaction while the substrate convert into product. How this happened? All about the concept and explanation we will discuss in this video lecture. Before this, you have learned the nomenclature of enzyme. In this way, you have learned the oxidoreductase, transferase, the isomerase, lyase, ligase, so many types of enzyme, and they are named as per their function was discussed in previous video lecture. Before that video, it means before the second video, the first video of enzyme, you have learned the discovery and features of enzyme. Enzyme are essential biomolecules that never participate in biochemical reaction, yet it accelerate the overall chemical reaction and speed up the overall chemical reaction. It means in very short time the chemical reaction occurs rapidly. That's why the enzyme play important role in chemical reaction as well as the biochemical reaction. Enzyme as like the protein, carbohydrate, nucleic acid and lipids have no any special structure. Actually enzymes are the products of protein. So next time if you have the question whatever the importance of protein in our life, you may write about the enzyme in that points. The products of proteins are enzyme, hormones, the overall body structure. So enzymes have no any special monomeric units. The monomers of enzymes are absolutely amino acids. The tertiary structure of protein enables the structure of amino acids. This should be structure of enzyme. This should be noted down in your copy. It was not mentioned in the features of enzyme that I have taught you. The tertiary structure of protein enables the structure of enzyme. That was discussed in the structure of protein, that is the primary, secondary, tertiary structure of protein, and the example of tertiary structure of protein. In that time I have discussed the enzyme. So enzymes are tertiary structure of proteins having the additional prosthetic group coenzyme cofactors, but it is the form of proteins. Now in this video lecture you will learn the mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action first studied by mechanism of enzyme action was first studied by Emil Fischer. Emil Fischer in 1894. Emil Fischer was the scientist who studied the mechanism of enzyme action, and he is popular with their model as key-log model of enzyme substrate complex. It means he is popular as key-log model for enzymatic action. Enzymatic action. की-लॉग मॉडल के केस में बोला जाता है कि ये किसने दिया था? एमिल फिशर, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही होता है. मतलब की मतलब आप जानते हैं चाबी होता है, लॉक मतलब होता है उसका, की मतलब होता है चाबी और लॉक मतलब ताला होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो की तरह से, और जो एंजाइम होता है लॉक की तरह से वर्क करता है. अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं. ठीक है ना. अब इसको एक्सप्लेन करना है. की लॉग मॉडल ऑफ
की लॉक मॉडल, हेडिंग आपका रहेगा की लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। लिख लीजिए कॉपी में, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। की लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, की लॉक मॉडल, की लॉक मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन given by Emil Fischer. Emil Fischer in 1894, given by Emil Fischer in 1894. ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। According to this model, every enzyme in a chemical reaction, for enzyme substrate complex with their specific substrate, According to this model, every enzyme in chemical reaction form enzyme substrate complex with their specific substrate. यानी कि कोई भी एंजाइम अपने बायोकेमिकल या केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है ना, ये बातें एकदम दिमाग में आपकी होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, इन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम substrate complex, that is also known as ES complex. In enzyme substrate complex, that is known as the ES complex, enzyme acts as lock and substrate as key. In enzyme substrate complex, enzyme act as lock and substrate as key. Finally, at the end of each chemical reaction, enzyme remain unutilized while substrate form products. ठीक है, एक बार और बता देना, लिसन। According to this model, every enzyme in chemical reaction form enzyme substrate complex. जितने भी एंजाइम होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जरूर बनाते हैं। ठीक है ना, जितने भी एंजाइम होते हैं वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ही बनाएंगे। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स। उसमें एंजाइम एक लॉक की तरह से और सबस्ट्रेट की तरह से, यानी कि चाबी की तरह से काम करेगा। फाइनली एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन द एंजाइम सेपरेट आउट फ्रॉम द रिएक्शन, दैट इज रिमेन अनयूटिलाइज्ड व्हाइल द सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। यानी कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं डायग्राम के थ्रू। इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि एकदम से आपको
क्लियर है। लिसन, सपोज दैट दिस इज द एंजाइम, दिस इज द एंजाइम एंजाइम एज लॉक, ये एंजाइम लॉक की तरह से मैंने बना दिया, प्लस सबस्ट्रेट, ये इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका सबस्ट्रेट है, जो कैसे बना दिया, की तरह से लिखेंगे सबस्ट्रेट एज की कैसे बना दिया, सबस्ट्रेट की तरह से। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये आपका हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये रेड कलर का था तो रेड कलर से मैं बना दूंगा, की में लॉक चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट, ये इसका क्या मतलब हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर से सबस्ट्रेट और एंजाइम में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब आगे क्या होगा, आगे एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और जो की है यानी कि सबस्ट्रेट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये एंजाइम ये एंजाइम है, ठीक है, यानी कि क्या लिखेंगे, फ्री एंजाइम। ये एंजाइम फ्री हो गया और इसका जो सबस्ट्रेट है यानी कि ये लॉक अब ये ब्रेक हो गया, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। In this way we can explain that the enzyme act as a lock, substrate as a key, form enzyme substrate complex, that is ES complex, and form the free enzyme. Enzyme further get free from the system and the product are formed from the substrate. यानी कि फिर ये एंजाइम दूसरे किसी सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट होगा। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बताया था कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिपिड को लाइपेज डाइजेस्ट करता है तो लिपिड किसी और से डाइजेस्ट नहीं होगा। रीजन क्या है, जितने भी की होते हैं वो अपने लॉक के लिए स्पेशल होते हैं सिमिलरली, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहा है ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज नोन एज एक्टिव साइट, और यही एक्टिव साइट स्पेसिफिक होता है जो प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाता है। मैंने बताया था जब आपको ये बताया था कि एंजाइम का जो फीचर्स है उसमें कंपोनेंट, जब एंजाइम की टाइप बता रहा था उसमें जो कंजुगेट एंजाइम है उसी में आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप बताया था, ठीक है। तो ये एक्टिव साइट स्पेसिफिक होता है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसके साथ लिंक अप हो पाता है, अदरवाइज सबस्ट्रेट कभी लिंक नहीं हो पाता। ये चीज दिमाग में बैठाना है, ये चीज आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इसी वजह से स्पेसिफिक लिंक अप बनाया क्योंकि इसका जो एक्टिव साइट है वो इसी के लिए बना हुआ है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट है और एंजाइम का एक्टिव साइट है, दोनों सिमिलर होते हैं। एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं,
नोट करिए, एंजाइम फॉर एग्जांपल लाइपेज, सबस्ट्रेट द लिपिड, क्या बना लिया, ये बना लिया लाइपेज लिपिड कॉम्प्लेक्स, लाइपेज लिपिड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फाइनली क्या बन जाएगा, लाइपेज अलग हो गया प्लस लिपिड किसमें कन्वर्ट हो गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल क्या है, प्रोडक्ट्स, दिस इज द प्रोडक्ट्स। आई होप पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एंजाइम क्यों सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, बिकॉज ऑफ हैविंग एक्टिव साइट्स। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो अलग क्यों हो जाता है, और फिर प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर you can prepare your own note along with the explanation. There is no need to explain by me because every part is important for you. The example is just below the diagram. I hope your concept regarding the mechanism of enzymatic action is clear. If you have still doubt, if you are in still doubt with the enzyme action, then you can frequently ask me in the live classes or in the comment box. Thank you.